So good evening. Ria, how are you feeling? কেমন ফিল করছো? ঠিক আছো? হ্যাঁ দিদি, একটু অসুস্থ আসলে। Okay. After every any therapy, sometimes we purge. Okay. So if we purge, অনেক সময় থেরাপির পরে এক দুদিন আমাদের মন খারাপ থাকে, শরীর খারাপ থাকে, everything is fine. Just allow it to happen, whatever it needs to happen. Okay. So এই টপিকটা এই টপিক ये जो टॉपिक है ना, this one is called keys to power, and it is from again from book Power. And but I just thought कि let me just break it down so that you can also grasp it and apply it in your life. हम लोग slowly जब जाएंगे ना तो assimilation and integration हमारे लाइफ में होने में easy होगा. बिकॉज हम एवरी डे कुछ ना कुछ टॉपिक ले रहे हैं, एवरी डे कुछ ना कुछ टॉपिक ले रहे हैं, बट वो टॉपिक तो मुझे अपने लाइफ में अप्लाई करना है, राइट? इंटीग्रेट करना है, उसको समझना है. उसके बाद मुझे नेक्स्ट टॉपिक में जाना है, या फिर जाते भी हूं तो ऐसी जाऊं कि मैं ऐसे पेस में रहूं कि एटलीस्ट आई एम एबल टू इंटीग्रेट. मैं सिर्फ ना सुनूं, उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करूं. Okay, so that's why keys to power, how, so same topic we are discussing, huh? That how to have power. We can have power with the help of love. When we emit emotions of good emotions, highly elevated emotions, we are sending out love. Any good emotion means I am emitting love, and that's why whatever we give out comes back to us in the form of love, right? Whatever we give comes back. आप देखना कि जब आप लो वाइब्रेशन में होते हो, when you are in low vibrations, when you are not emitting good emotions, you will see you attract. बोलते हैं when we are in very high vibrations, we attract miracles in our life. हम जब अच्छे अच्छे emotions, when we send out love, happiness, joy, peace, gratitude, happy, ये सारे emotions जब हम डेली बेसिस में ज्यादा एमिट कर रहे बॉडी से, we attract miracles in our life. On the other hand, हम जब दर्द, पेन, सैडनेस, कंप्लेन, विक्टिम फीलिंग, ऑल दीज इमोशंस एमिट करते हैं, वी अट्रैक्ट misfortune, miseries in our life. We attract crisis in our life. Okay, and I can also just, that's what a shift. एक तो है कि कर्मा है and everything जिसकी वजह से challenges आएंगे, but उसके अलावा भी if my life is continuously having crisis and crisis and crisis, it means somewhere deep down my emotions are attracting that kind of thing in my life. तो हाउ नाउ आई नीड टू नो दैट व्हाट इज द की टू पावर. अभी पावर मेरे जीवन में, मैं सो दैट आई बिकम पावरफुल. सो यहाँ पे इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकमिंग पावरफुल डजंट मीन एरोगेंट, किसी पे डोमिनेट करूंगी, मैं किसी को सुना दूंगी, मेरे पास बहुत पैसे होंगे. वो सब कुछ तभी होंगे जब मैं बहुत प्यारी बन जाऊंगी, खुद से प्यार करूंगी, जीवन से प्यार करूंगी, लोगों से प्यार करूंगी, हर चीज से, लाइफ से प्यार करूंगी. यहाँ पे बोल रहे कि हम जब when we start loving life, you know that's when the power starts getting activated. यहाँ पे बोल रहे keys to power, थ्री पावर्स, इसीलिए मैंने इसको 3 दिन में डिवाइड किया है. सो वी विल ब्रेक डाउन. आज हम प्रैक्टिस करेंगे, कल इवनिंग को क्लासेस नहीं होंगे बिकॉज आई विल बी आउट. डे आफ्टर टुमारो हम फिर से सेकंड वाला डिस्कस करेंगे, कीज टू पावर, एंड फ्राइडे को हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस करके ब्रेथ वर्क कर लेंगे. सो थ्री कीज टू पावर इज लव, ग्रेटिट्यूड एंड प्ले. यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं हाउ थ्रू emitting love we can attract more greatness and miracles in our life. How? By emitting gratitude and expressing gratitude moment to moment basis, we can attract more miracles and blessings in our life. And in the same way, the authors also talks about how when we incorporate play in our life, fun in our life, then also we create miracles and joy. So हमको लगता है कि हम जितना ज्यादा अपने
कंपनी, अपने जॉब, अपने बॉस, अपना मदर इन लॉ, अपने इसके बारे में हम जितना करेंगे उतना ज्यादा हम हमको लगता है कि मेरा सिचुएशन और चेंज हो जाएगा, और ज्यादा चेंज हो जाएगा। बट यू विल सी, आप जब भी, आपने कभी देखा है कि आप जब सैड होते हो आपका बच्चा बीमार हो जाता है? आपने देखा है कभी कि आप जब थोड़े सैड हो जाते हो, हैव यू ऑब्जर्व्ड? और या फिर आपके बच्चे के साथ कुछ होगा, आपका वाइब्रेशन जब लो होता है, especially people here who are married is Suchita and Bipasha. Have you observed that? कि आपका बच्चा भी सैड हो जाता है या फिर बीमार हो जाएगा या फिर कुछ होगा? দিদি স্যাড হয় এটা জানি, বাট কখনো এরকম ভাবে রিলেট করে দেখিনি যে ওরা সিক হয় কিনা। এবার থেকে চেক চেক করবো কখনো। হ্যাঁ, যদি কন্টিনিউয়াসলি স্যাড থাকো, ভাইব্রেশনস আর লো, you will see your kids also get affected. In the same way, not just kids, I'm telling you, when you are continuously sad and a depressed state, your parents will get affected. Your spouse will get affected. वो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो लोग अपना अपने पेरेंट का तबीयत खराब हो जाता है, स्पाउस का तबीयत खराब हो सकता है। यू कैन सी इट इज सो इंटर रिलेटेड। दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। सिर्फ मेरे जीवन में मिरेकल्स मैनिफेस्ट करने के लिए ही हाई वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे जीवन में मेरे आसपास के लोगों को भी हैप्पी रखने के लिए मेरा हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे कनेक्टेड लोगों को हैप्पी एंड स्टेबल रखने के लिए। सो हियर the author is talking about the first point here. He is talking about the key of love. The first point, keys to power. First key is the key of love. Hmm? So यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि लव लाइक यू हैव नेवर लव्ड बिफोर। आपने जितना भी प्यार किया है, और ऑथर हमको लगता है कि प्यार का कोई लिमिट है, वो इतना ही प्यार कर सकती हूँ मैं। बट इमोशन, जो प्यार का इमोशन ना ना उसका ना एक इन्फिनिट वाला स्टेट है कि आप जितना आप जितना खींच सकते हो उतना ज्यादा आप प्यार कर सकते हो, उतना ज्यादा आप यू कैन फील लव, गिव लव, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो प्यार का। ओके, आज हम कोशिश करेंगे थ्रू मेडिटेशन, हाउ कैन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लव। ओके, सो सो इट्स सेइंग दैट मैं इस पेज को मैं ना कंप्लीटली पढ़ना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू जस्ट स्पीक आउट, बिकॉज ये फुल पेज ही इतना इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ एक एक पॉइंट बोलूंगी ना, देन सो बी वेरी अटेंटिव अबाउट व्हाट आई एम शेयरिंग। ओके, वेरी अटेंटिव सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। To use love as the ultimate power in your life, you must love like you have never loved before. Fall in love with life. However much you have loved in your life, doubt that feeling, multiply that feeling, sorry, double that feeling, multiply that feeling by 10 times, multiply it by 100 times, 1,000 times, 1,000,000 times, because that is the level of love you are capable of feeling. Okay, there is no limit, no ceiling to the amount of love you can feel, and it is all inside you. You are made of love. Okay, हमको लगता है ना, हम कभी कभी प्यार में पड़ते हैं, हमको लगता है प्यार में पड़ गए हैं, बट इन रियलिटी मैं ही प्यार is an emotion which you can feel any moment, any time. It doesn't have to have a, you don't need to have a person to feel that emotion, you can just feel it in your body. This is what love emotion is all about. It is the very substance and nature of your life and the universe, and you can love far more than you have ever loved before, and far more than you have imagined. Okay, then when you fall in love with life, every limitation disappears. So हमारे जीवन में इतना लिमिटेशन है, हम मैजिक नहीं बिलीव करते हैं, होता नहीं है, स्ट्रगल करते हैं। क्यों स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि हम अपने इमोशंस में बहुत रेजिस्टेंस, जहां पे प्यार नहीं है वहां पे रेजिस्टेंस है। ये ठीक नहीं है, मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा ऐसे, मुझे मेरे ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे, दे आर ऑल रेजिस्टेंसेस। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशन द वे इट इज बाय गिविंग लव के। आई एक्सेप्ट जो भी हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फिल्ड विथ लव. So that's why it's saying that you break the limitations on money, health, happiness, and the limits of joy in your relationships. When you fall in love with life, you have no resistance, and whatever you love appears in your life almost instantaneously. और बोल रहे कि अगर आप शिद्दत से प्यार कर सकते हो, इंटेंसली प्यार कर सकते हो, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो भी आप चाहते हो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो सकता है आपके जीवन में. Okay, this is what it is talking about, the power of love.
Okay, your presence will be felt when you walk in a room. इतना प्यार आपने, मैंने कल भी आनंदमयी माँ का एग्जाम्पल दिया है, आज भी देती हूँ। आनंदमयी माँ को आप देखोगे ना, शी इज ऑलवेज एक्सटेटिक। देर आर सो मेनी लाइक पीपल लाइक दिस। तेलंगाना स्वामी बोल के थे, वो भी इतने हैप्पी, इतने वो के हमेशा ही वॉज सो मच इन कनेक्टेड विद द दाव, विद द यूनिवर्स, के ऑल द टाइम ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी विद यूनिवर्स। सोचो, जब आप एनलाइटमेंट, हम मोक्ष, हम छोटे छोटे चीजों में खुशी मांगते हैं, बट मोक्ष की खुशी, खुशी एक ऐसी खुशी है, आप जब एनलाइटन लोगों को देखोगे तब समझ में आएगा, वो लोग ऐसे हो जाते हैं, मीन्स इतने खुश है, वो होश नहीं रहता है, होश नहीं रहता है कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, आप अपने बॉडी को भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, दैट यू नो कि योर प्रेजेंस विल बी फेल्ट। सो ऐसे लोगों को देखने से ही समझ में आता है कि कुछ तो है इनमें, व्हाई आर दे सो डिफरेंट, दे लुक सो डिफरेंट इन एवरीथिंग। योर प्रेजेंस विल बी फेल्ट व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम, अपॉर्चुनिटीज विल पोर इनटू योर लाइफ, एंड योर स्लाइटेस्ट टच विल डिजॉल्व नेगेटिविटी। आप इतने प्यार में रहोगे कि आप छोटा सा भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिविटी आप टच करोगे उसको, वो गल जाएगा। प्यार ऐसा कर सकता है। इसीलिए यू हैव सीन योगीज, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स, मैंने आप लोगों को पढ़ने को बोला था। देखो वहां पे योगीज के कितने कितने पावरफुल है। वो इतने पावरफुल इसलिए है बिकॉज उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है इतना लव उनके अंदर, भर भर के उनके अंदर प्यार है। दैट्स व्हाई दे कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स सो beautifully. You will feel better than you thought it was possible to feel. You will be filled with unlimited energy, excitement, and an unquenchable zest for life. You will feel as light as feather, like you are floating on air, and everything you love will just seem to fall at your feet. और जो भी आप चाहोगे, it will feel as if it will fall on your feet. Fall in love with life, unleash the power within you, and you will become unlimited and invincible. Okay? This is what happens. Internet का कुछ problem हो रहा है क्या? I think there is some problem with the internet. So, fall in love with life, unleash the power within you, and you will become unlimited and invincible. Okay? So, this is what. But now we have to know how to fall in love. Okay? We have to know how to fall in love. ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि लव इज सो पावरफुल इन एवरीथिंग, बट हाउ डू वी फॉल इन लव? वी कैन फॉल इन लव बाय रियली, बोल रहे कि लवर्स को जब हम प्यार करते हैं, वैसे अगर हम व्हेन वी फॉल इन लव विथ लाइफ, फॉल इन लव विथ लाइफ बोल रहे हैं, राइट? तब आप ऐसा मिरेकल्स देखोगे। तो बोल रहे कि व्हेन यू लव अ लवर, आप जिससे प्यार करते हो, कैसे प्यार करते हो? अपनी आंखों से प्यार देखते हो, उसकी जब उनको सुनते हो, प्यार से सुनते हो, जब बोलते हो, जब पहला 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 प्यार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आफ्टर अ सर्टेन टाइम व्हेन थिंग्स बिकम, कभी कभी चैलेंजेस आते हैं एवरीथिंग, तब हम झगड़ा होता है एवरीथिंग, उसमें भी बहुत प्यार छुपा है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट, जहाँ पे हम उनकी गलतियां भी नहीं देखते हैं। तो वैसे प्यार में क्या होता है, हम आंखों से प्यार देखते हैं, कानों से प्यार सुनते हैं, मुंह से प्यार बोलते हैं। तो बोल रहे कि अपना जीवन को ऐसा बना लो, देखो तो सिर्फ प्यार ही देखो हर जगह, नफरत नहीं देखो, जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो मत देखो। सुनो तो सिर्फ प्यार ही सुनो, जो भी चीज बोलो कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में, कोई भी गाना सुन रहे हो तो बोलो कि मुझे ये गाना बहुत, आई लव दिस सॉन्ग, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। सुनो तो लव सुनो, बोलो तो अच्छा, लव लैंग्वेजेस। हम क्या करते हैं कि ठीक है, एक्टिंग सही एंड एवरीथिंग, बाहर अच्छा अच्छा बोल लेते हैं, घर में आते हैं तो अपना सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे निकालते हैं, स्पाउस पे निकालते हैं, पेरेंट्स इन लॉज पे निकालते हैं। Okay, but also remember at that time, the moment we are doing this, again हमारा लव कट रहा है, हमारा लव हमारे जीवन से कट रहा है। अगर हम सोचे कि नहीं वो तो हमारे क्लोज है, कुछ भी कर सकते हैं करके, बट रिमेम्बर उससे भी हमारा जो प्यार जो एमिट कर रहे हैं वो कट रहा है, तो इसीलिए प्यार वापस नहीं आएगा। सो वी हैव टू बी ऑलवेज वेरी माइंडफुल ऑफ हाउ मच लव आई एम सीइंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। Okay, so yahan pe he's saying whatever you are doing, wherever you are in your day, look for the things you love. You can look for technology and the inventions you love, look for buildings you love, cars and roads you love, cafes and restaurants you love, stores you love. Walk down a street or through a store with the and or through a store with the intention
of finding as many things as you can that you love. Okay, look for things you love about other people. जब लुक करोगे, सोचो मुझे अभी देखना है, तो देखना तो क्या है, तो आप कार देख सकते हो कुछ दैट यू लव, स्टोर देख सकते हो, ड्रेसेस देख सकते हो जो आप प्यार करते हो, आप देख के बोल सकते हो ये मुझे बहुत प्यार, जो भी देखते हो हमेशा अटेंशन लव पे फोकस करो कि मैं अभी इस एरिया में, अभी इस रूम में हूँ, तो मुझे क्या अच्छा लग रहा है, वाह मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मेरा आई हैव अ गुड रूम, मेरा जो भी चाहिए, मेरे वार्डरोब्स बहुत बड़े बड़े हैं, मेरा एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल है। मैं आज ही देख रही थी, मैंने जब अपना ड्रेसिंग टेबल खोला था, मैंने देखा कि कितने सारे उसके शेल्व्स है, उसमें कितने सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, यू नो, एंड जस्ट लुकिंग एट देम, मैं बोल रही थी वाओ, मैं जस्ट देख रही थी एंड आई वाज जस्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड कि वाओ मेरे पास कितना कुछ है। हम सोचते ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, ऑलरेडी जो है उसको क्यों नहीं लव डालते, especially after reading it, even it happened to me even more. So आंखें खोल के देखो, even dress you're wearing, I just wore this dress and I was, ये ड्रेस नहीं, ये स्वेटर, क्योंकि ठंड लग रहा है, तो मैं पहन के बोल रही थी अच्छा ये स्वेटर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव दिस स्वेटर, so it doesn't mean, it's not talking about obsession, greed, it is talking about emitting the love, emitting the emotions of love. Whatever you see, love, anything you like and love, just feel it. Try to focus on what you love. Okay. Look, जैसे बोल रहे, look for everything you love in nature. हाँ, birds, trees. अभी बाहर जा रहे हो तो birds देखो, कल for some reason I went to a beautiful park. एंड घर के सामने, घर के बहुत सामने नहीं है बट काडुगुडी ट्री पार्क, और बहुत एरिया कवर करके, so sorry. Today the internet has some issues, but I hope it has come back. Okay. So, कल मैं जा रही थी. So, and I was a little low. So, and I was feeling a little low, especially, again, came back to Bangalore, again back to square one. And रिदान का स्कूल एंड एवरीथिंग, तो मैं ना फिर से, और वेदर बहुत लो था, बहुत ठंड था, 2 दिन से बहुत बारिश हो रही है एंड एवरीथिंग, तो आई वाज फीलिंग अ लिटिल लो एंड आई इमीडिएटली कॉट माई सेल्फ एंड आई रियलाइज कि मैं लो अपने आप को नहीं कर सकती हूँ, आई हैव टू फाइंड रीजंस टू go into high vibration. So what I decided is that I will go to that park and I will, and because nature हमको ना help करता है to ground, to go into, into oneness state, emptiness state, have good feeling state and everything. So I went there to that park. एंड जाते ही ना मैंने ग्राउंड किया, मैंने नेचर को देखा, मैंने देखा कितने सुंदर है ये ट्रीज, कितने डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज है, स्क्विरल स्क्विरल छोटे छोटे स्क्विरल्स ऐसे करके ना, इतने, दे आर सो मच इन द दाव स्टेट, जो मैंने दाव स्टेट के बारे में मैंने कल पढ़ा था ना कि फ्लो स्टेट में रहते हैं, फ्लो, वननेस एंड फ्लो स्टेट में, आप देखना नेचर बहुत ज्यादा वननेस एंड फ्लो स्टेट में रहता है हमेशा, it doesn't want to prove anything, it doesn't want to go fast, it is, and देखो nature does not hurry but everything happens. नेचर कभी हरी करता है कि मुझे वहां वो पकड़ना है, वो बस पकड़ना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसको जब फल देना होता है वो दे देता है, उसको जब पत्ते गिराने होते हैं कर लेता है, वो सब अपने टाइम पे करता रहता है। नेचर, ट्रीज, animals are a perfect example from whom we can learn to be in Tao. So I decided to, I would go to that park, थोड़ा मैं अपने आप को स्टेबल करूंगी। तो मैं उस स्क्विरल को देख के, छोटे छोटे चीजों को देख के थोड़ी देर में ही ना मेरा मन बहुत खुश हो गया, मुझे लगा अरे वाओ, स्क्विरल इतना प्यारा है, इतना क्यूट है, एकदम फन जैसा, दे डोंट, इतना जंप करके रन करके जा रहा है एंड एवरीथिंग, वो सब छोटे छोटे चीज, बड़ा चीज मुझे हैप्पी नहीं कर रहा था, जस्ट बाय सीइंग ऑल दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी। Okay, so this is what happens when we are trying to find joy. जब हमको पता चल गया कि जॉय में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिवेटेड इमोशंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हम डिप नहीं करते, मैं भी डिप करती हूँ, मैं भी कर रही थी, इमीडिएटली व्हेन आई रियलाइज आई इमीडिएटली चोज टू नॉट डिप, फाइंड सम वेज टू पिक माई सेल्फ अप। सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट कि नेचर को देखो, बर्ड्स को देखो, उसको देख के प्यार फील करो।
एंड एंड देन दे बोल रहे कि थिंक टॉक डू, ओके, थिंक टॉक डू, think about love, talk about love, do things with love, okay, because when you are doing all of these things you are feeling love, okay. So जब आप think talk and do कुछ भी कर रहे हो out of love, then you are feeling love. That's why so important it is to do all these things with love. Talk about the things you love about your home, your family, your spouse and children. Talk about the things you love about your friends. हम क्या करते हैं, फ्रेंड में क्या अच्छा नहीं है वो फोकस करते हैं, पर देखो मुंह से हम जब बोल रहे हैं ना, हम हमेशा रिमेम्बर करो वो लवर की बात कि आप पहली पहली बार जब प्यार करते हो किसी के साथ, आपको सिर्फ उसके साथ अच्छा ही प्यारा मीठा मीठा बात ही निकलता है आपका कानों से भी। आप सिर्फ वो जो भी बोलता है शायद वो एकदम रेड फ्लैग है, टॉक्सिक आदमी है, लेकिन आपको उस टाइम में कुछ नहीं दिखेगा, अंधे हो जाओगे। लव इज ब्लाइंड बोलते हैं ना। लव इज फुल ब्लाइंड, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको सिर्फ लग रहा है कि नहीं वो तो बहुत प्यारा है, उसका वो जो भी बोल रहा है बहुत अच्छा है, या सो दिस इज हाउ in the same way we will talk about the things you love about your home. घर पे जो जो चीज आपको प्यारा है, प्यार करते हो, your family, your spouse, your children, अपने अपने पेरेंट्स के बारे में। हमारा क्या होता है, पेरेंट्स में क्या क्या ठीक नहीं है उस पे फोकस करता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि you know focus on the things you love about them. Talk about the things you love about your friends, tell them what you love about them, talk about the things you touch, smell and taste that you love. So this is what we will continuously do, okay. look for love. और यहाँ पे बोल रहे कि it's also ये इतना easy नहीं है, that's why people are not being able to manifest things so easily. होता तो सब लोग जीवन में अच्छे अच्छे चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। पहले बात तो उनके पास दे डोंट हैव द नॉलेज एंड द साइंस टू मैनिफेस्ट इट। सेकंड है करते भी है तो फिर शिफ्ट कर जाते हैं नेगेटिविटी में एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू कंटिन्यूअसली लुक फॉर लव। यू हैव टू कंटिन्यूअसली, आप स्ट्रीट से वॉक कर रहे हो तो आप स्ट्रीट में वॉक कर रहे हो तो किसी आदमी को देख रहे हो तो कि उसका चेहरा मुझे कितना प्यारा लगता है, लव द फेस, यू नो फाइंड आउट थिंग्स व्हाट यू लव, अच्छा वो रेस्टोरेंट इतने सुंदर से सजाया है, मुझे इतना प्यारा, वो ड्रेस जो बाहर दिख रहा है शॉप में वो कितना मुझे, आई लव दैट ड्रेस, इवन इफ यू डोंट वांट टू बाय इट, बट make sure you are consciously always trying to feel love. That is the mantra of focusing on high energy even when you have got up and from meditation. That's what I said, right? Shifting thought process. So then situations, and situations में बोल रहे हैं कि situation में भी love ढूंढो। ये तो बोला कि आप बाहर जा रहे हो देखो एंड एवरीथिंग, बट सिचुएशंस, इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में भी प्यार ढूंढो। ट्राई टू फील लव। आई लव, एज फॉर एग्जांपल सिचुएशन, as for example, I love to have classes with you people. I'm so grateful that you are there every day. Yes, it's I'm sure you must be benefiting from whatever I'm giving you, but at the same time I also love to see you all every day, morning, evening. That is what I feel, that love. So from this situation, from the classes that I am taking, I feel it, I really mean it, and at the same time मैं consciously और ज्यादा अगर मैं focus करूँ to feel it कि I love to meet these people every evening, then that means मैं situation से भी मैं प्यार ढूंढ रही हूँ, situations में भी प्यार डाल रही हूँ, circumstances, events में भी मैं प्यार डाल रही हूँ। किसी ने मुझे फोन किया है, okay, तो what will happen is that somebody calls me and I say I love to take phone calls from my friends. मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना, अच्छी अच्छी बातें करना एंड एवरीथिंग, वो मेरी खबर लेते हैं मुझे, आई लव दैट फैक्ट। सो अब सिचुएशन से भी कॉन्शियसली सबकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियसली प्यार, ग्रेटिट्यूड और प्ले को ढूंढने की कोशिश करो। ओके, दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। I love laughing with my friends, with people. I love seeing people happy. So सब सिचुएशन से हमको कुछ ना कुछ बनाना है। I love being able to relax on the train or the bus. आप ट्रेन बस में भी जा रहे हो, ओके, आप बोल सकते हो अरे कितना देरी, कितना टाइम लग रहा है बस, ओ माय गॉड मेरा काम तक मुझे पहुंच जाना चाहिए एंड एवरीथिंग। और यू कैन से कि अच्छा
मुझे अभी इतनी ठंड में, एज फॉर एग्जाम्पल लाइक विपाशा इज इन डेनमार्क, सो मुझे आप बोल सकते हो कि मुझे इतनी ठंड में वॉक नहीं करना पड़ेगा, आई एम लव द फैक्ट दैट आई कैन रिलैक्स इन द बस. सो दिस इज हाउ द ऑथर इज गिविंग एग्जाम्पल्स कि कैसे आप सिचुएशन से भी प्यार निकालोगे. हम्म. ओके. सो सिटी का फेस्टिवल हो रहा है, दिवाली हो रहा है या क्रिसमस हो रहा है, वहां पे भी बोलो आई लव क्रिसमस, आई लव दिवाली. सो दिस इज हाउ इट इज सेइंग एवरी इवेंट एंड सिचुएशन में कैसे आप प्यार ढूंढोगे. ओके. So again, it is saying that, if you are not feeling good and you want to change the way you feel, or if you want to lift good feeling higher, then take a minute or two and go through a mental list of everything you love and adore. Even अगर ये जो वाइब्रेशन है ना, आप लो है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका सैड है, मन है, देन डेलिबरेटली आप एक लिस्ट बनाओ. एक्चुअली देर इज अ टास्क दैट यू कैन डू. बोल रही कि in 3 months, Riya, the network has problem from my side or your side? Riya, कुछ तो একটু गड़बड़ है. সমস্যা হচ্ছে। पन्ना लाल भी হ্যাঁ দিদি, निकल गए. पन्ना भी निकल गए. एंड नेटवर्क बार बार आप दोनों निकल गए फिर घुस रहे हो, वैसा ना नेटवर्क मेरे साइड से प्रॉब्लम है, আমার দিকে প্রবলেম না তোমার দিকে প্রবলেম, কি জানি, দেখা যাক. আমার তো মনে হচ্ছে আইডির প্রবলেম। না দিদি, এখানেও সমস্যা হচ্ছে দিদি, এত তো সমস্যা তো হওয়ার কথা না এখানে। কারণ আমি ওকে. তোমার অর্ধেক কথা শুনতে পাচ্ছি, আবার অনেকটা শুনতে হয়ে যাচ্ছে, স্টাক হয়ে যাচ্ছে। ওকে. 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 Okay, got it. I think this is not working. I should put it in a different way. Okay, I got it. Let me see. My God. Okay, I will change this because I was changing room, so I wanted a different bulb for it. ठीक है. ओके. सो सो व्हाट वी अंडरस्टूड इज दैट द मेन फैक्टर, बोल रहे कि हमको लगता है कि हाँ, जब लव फील करेंगे करेंगे, जब नहीं फील करेंगे नहीं करेंगे, बट ये है ट्रेनिंग, है एक ट्रेनिंग प्रोसेस है. अपने वाइब्रेशंस को हाई रखना है, मैनिफेस्टेशंस अगर करना है जीवन में, एनलाइटनमेंट लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में मिराकुलस अगर होना है, हर चीज के लिए ये ट्रेनिंग है टू फील लव, ग्रेटिट्यूड एंड बी इन प्ले. ओके. सो कैसे ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग ये है कि एवरी मंथ में एक बार एक लिस्ट बनाओ, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लव अबाउट लाइफ. अपने घर के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, हर चीज के बारे में, हर चीज को आप डाइसेक्ट कर सकते हो कि इसमें मुझे ये बहुत, आई लव इट, आई लव दिस, आई लव दिस फूड, आई लव दिस ड्रेस, आई लव दिस. सो आप जितना ज्यादा वो बना लोगे ना, तो आप जब भी डिप्रेस्ड होगे, जब भी आप अपसेट होगे, आपके पास वो लिस्ट है बना हुआ, तो आप कंटिन्यूअसली उस लिस्ट को अगर आप बोलोगे मुझे ये पसंद है, दो चीज होगा. एक है आप जब सैड होगे आपका लाइफ कंडीशन बढ़ जाएगा, और सेकंड है कि बिकॉज आप बार बार यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे ये चीज बहुत पसंद है, यूनिवर्स आपको और भी ज्यादा वो चीज आपको देगा. जो चीज पे आप फोकस कर रहे हो ना, वो मीन्स जितना आपको जरूरत है उससे ऐसा नहीं कि भर के पूरा ज्यादा जो आपको चाहिए भी नहीं वो भी आपको दे देगा, नहीं. बट बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट यू लव, कि वो यूनिवर्स, तो यू आर नेचुरली अट्रैक्टिंग देम इन योर लाइफ. एंड सेकेंड इज आपका वाइब्रेशन जब भी सैड होता है, आप अगर आप वो लिस्ट याद कर लेते हो कि मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगता है, तो भी आपका आपका वाइब्रेशन हाई हो जाएगा. Okay, so love is being, then what it is talking about is, um yeah, look for and feel things you love and turn away from the things you don't love. So ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कोई भी चीज आपको पसंद नहीं है बट एडिक्शन हो जाता है ना, हमको हमको दर्द का भी एडिक्शन हो जाता है, हमको ना सैडनेस का भी एडिक्शन हो जाता है कि ये चीज मुझे पता है कि मैं सैड हो जाती हूँ इसको सोच के, बट मुझे मेरा एडिक्शन हो गया है, उसी को मैं सोचती रहती हूँ क्योंकि मुझे डीप डाउन अच्छा भी लगता है थोड़ा सैड होने में. So you have to be very careful that look for things you
don't, so look for the things you love and turn away from the things you don't love. The moment कुछ आया और आपको लगा है कि मैं भी थोड़ा फील करूं, विक्टिम फील करूं, मेरा एडिक्शन किक कर रहा है कि थोड़ा विक्टिम फील कर ले, संजुक्ता तेरे जीवन में कितना बुरा हुआ है, लोगों ने तेरे साथ कितना बुरा किया है, ये किक आया है एक एडिक्शन का, मेरा इमोशन फील करना चाहता है वो, immediately turn away from that emotion and again focus on what is it that you love. Okay, this is what it is talking about. And then यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला है कि love is about being alert. alert love, why is love is being alert क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि आधा टाइम ही ना हम क्या करते हैं, ये माइंडफुल होने में भी हमको हेल्प करता है जब हम लव पे फोकस करते हैं, बट यहाँ पे क्या, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग माइंडफुल हम कितने तरीकों से करते हैं, एक तो बिल्कुल जो भी काम करे उसको इतना ध्यान से करे कि मेरा दिमाग और कहीं पे ना जाए। माइंडफुल हम ऐसे भी करते हैं जहां पे हम वी आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट सो मच, फोकसिंग ऑन द ब्रेथ एंड आउट, ब्रीदिंग इन एंड आउट एंड वॉकिंग, माइंडफुल वॉकिंग करते हैं तो मैं ब्रेथ और वॉक पे इतना फोकस कर रही हूँ तो कुछ और नहीं सोच पाती हूँ। इन द सेम वे यहाँ पे अगर आप माइंडफुल इन फोकसिंग ऑन लव हो जाते हो, सेम आपका दिमाग बंद हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, क्यों, व्हाई आर वी नॉट बीइंग एबल टू फाइंड लव? एक्चुअली हर जगह में प्यार है, हम ढूंढे तो हमको हर मोमेंट में प्यार मिलेगा, बट हमारा जो मेंटल चैटर है जो चल रहा है बार बार इतना बार बार चल रहा है, वो हमको प्यार ढूंढने नहीं देता है, क्योंकि दिमाग चल रहा है कंटिन्यूअसली, कुछ ना कुछ सोच रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव ये वो, और इसीलिए ना मैं प्यार ढूंढने का कोशिश, मैं इल्यूजन में आ गई हूँ, मैं अगर मेरे सामने कोई प्यार आ भी रहा है तो मैं उसको देख भी नहीं पा रही हूँ, इतना सारा प्यार, आई एम सराउंडेड विथ सो मच लव, एज आई जस्ट राइट नाउ टोल्ड यू कि आई लव द माई रूम, आज मैंने अपने बेडशीट्स चेंज किए हैं, मेरे बेडशीट्स बॉम्बे डाइंग के हैं, मैं जब पकड़ती हूँ इतना सुंदर प्रिंट है मेरे बेडशीट्स, देखो हम देखते ही नहीं है ये सब, हाँ, हम लोग, हाँ, काम, बट इसी रूम में कितना प्यार छुपा है। अगर मैं अलर्ट हो जाती हूँ कि देखो मेरे बेडशीट्स, मेरा मेरा जो कंफर्टर है इतना कोजी है, मेरे सारा कुछ इतना कोजी है, आई लव माय रूम, इट्स सो कोजी, इट्स सो वार्म, अभी बिकॉज मैं फोकस कर रही हूँ तो मैं लव देख रही हूँ, एवरी डे एवरी टाइम मेरे पास है वो लव, मेरे पास जैसे आपके पास भी आपका रूम है फोकस करने के लिए, राइट? सो इसीलिए बोल रहे हैं कि हम तभी लव ढूंढ पाएंगे जब हम अलर्ट हो जाएंगे, अपने माइंड के चैटर को बंद करके लव को ढूंढना, कॉन्शियसली लव को हम ढूंढना कोशिश करेंगे। हाँ, so what it is saying is that if you are walking down the street listening to the thoughts in your head, you miss it all. अगर आप स्ट्रीट में वॉक कर रहे हो और आप आपके दिमाग को ही सुन रहे हो, ये हुआ वो हुआ, तो जो आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में कितना कुछ देख, सुंदर सुंदर बोलने को है, ग्रेटफुल फील करने को है, जॉय फील करने को, आपने सब मिस कर दिया बिकॉज आपके दिमाग के चैटर के साथ आप बैठे हुए हो। That's what it is talking about. You have to be alert to see the things that you love. You have to be alert to hear the sounds that you love. You have to be alert to catch the beautiful smells of flowers as you walk past them. You have to be alert to really taste the food you are eating and feel the fullness of the flavor. इसलिए माइंडफुल टेक्निक हम करने से हमको ना बहुत प्यार भी फील होता है। अब अगर आप देखो, हम जब माइंडफुली कब कुछ कुछ करते हैं ना, बहुत अच्छा भी फील क्यों होता है? बिकॉज हम इतने फोकस्ड वे में उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, हम लव फील करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज हम अलर्ट हो गए, हमारा दिमाग नहीं गया है, खा रहे तो खा ही रहे, उसको एंजॉय कर रहे, खाने को ही एंजॉय कर रहे, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, बी लव इज अबाउट बीइंग अलर्ट. The good news is that the more you give love, the more alert and aware you will become. तो ये भी है कि मैं जितना ज्यादा प्यार मैं दूंगी, फील करूंगी एवरी मोमेंट, सारी चीजें देख के, ये सब देख के, उतना ज्यादा मैं स्लोली स्लोली अलर्ट भी होना स्टार्ट करूंगी। ओके, एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट एक माइंड हमको चलाने का, माइंड का काम दो है। माइंड बहुत अच्छा चीज है टिल द टाइम इट इज अ सर्वेंट। माइंड बहुत गंदा चीज है जब वो मास्टर बन जाता है, वो हमें बहुत परेशान करता है। जब वो सर्वेंट हो जाता है ना हमारा, वो सबसे अच्छा चीज है। क्योंकि मैं अभी बोलूंगी माइंड, लव को ढूंढो,
तो माइंड लव को ढूंढेगा। लेकिन अगर माइंड मेरा मास्टर है तो माइंड बोलेगा मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, मुझे अभी ऑफिस पहुंचना है, मेरा बॉस ऐसा प्रॉब्लम करता है, और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ अपने माइंड को फील करने में कि माइंड बंद करो, लव को फील करो, लव को फील करो, नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वो अपने तरीके से चले जा रहा है। So with meditation, with awareness, with consciousness, we should always ensure that we become the master of our mind. We make sure that मैं जो सोचना चाहती हूँ वही सोचूं। थोड़ा टाइम नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअसली बोल रहे ना, अब्राहम हिक्स क्या बोल रहे कि सर्च फॉर गुड फीलिंग थॉट। सर्च नहीं हो रहा है, सैड हो तो कुछ ना कुछ कोशिश करते रहो टिल द टाइम यू फील अ गुड फीलिंग थॉट। और यहाँ पे तो कितने सारे टेक्निक्स भी दे दिए हैं ना गुड फीलिंग थॉट्स के लिए। मैंने भी आप लोगों को कितना टेक्निक्स दिया है गुड फीलिंग थॉट्स के लिए। हो पोनो करो, देन शिफ्टिंग थॉट्स करो, अच्छे थॉट्स करो। आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, उस आपको समझ में आ गया तो आप क्या चाहते हो उस पे फोकस करो। या इस बुक में बोल रहा है कि लव पे फोकस करो, ग्रेटिट्यूड पे फोकस करो, प्ले पे फोकस करो। सो वी हैव नाउ टूल्स। नाउ इट इज अप टू अस हाउ वी कैन नाउ यूज, we can master our mind, instead of the mind mastering us. ओके, सो देखा, इसलिए मैंने इसको तीन तीन में डिवाइड किया। अगर मैं इस चैप्टर को आज ही खत्म करने का कोशिश करती ना, इतना छोटा छोटा पॉइंट्स है, आप लोग मिस कर जाते हैं। आपको इंटीग्रेट, पहले आप लव को इंटीग्रेट करो। कल परसों हम लोग ग्रेटिट्यूड को इंटीग्रेट करेंगे। ग्रेटिट्यूड, द पावर ऑफ की ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो फिर अभी क्या बोल रहे हैं, अभी हाउ टू कीप योर माइंड फोकस्ड ऑन लव। अभी हमको पता चल गया, हमको बहुत कुछ है, बट अगेन फिर से ऑथर बोल रहे हैं कि हाउ टू कीप योर माइंड फोकस्ड ऑन लव। ऑथर बोल रहा है क्वेश्चन पूछो। ओके, आस्क क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? what can I see that I love? How many things can I see that I love? So अभी मैं क्या देख रही हूँ जिसको मैं अभी प्यार कर सकती हूँ? हाउ मेनी थिंग्स कैन आई सी दैट आई लव? और कितने कितने चीज है जिसको मैं प्यार कर सकती हूँ? पूछो अपने आप को, क्या क्या है मेरे पास अभी मैं इसको प्यार कर सकती हूँ? व्हाट एल्स इज देयर दैट आई लव? और क्या है मेरे जीवन में जिसको मैं प्यार कर सकती हूँ? क्वेश्चन पूछो अपने आप को, तब वो निकल के आएगा। इट इज नॉट अ ठीक है प्यार करो प्यार करो। इट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। एक्टिविटी, अपने आप को एक्टिविटी जैसा हमको लेना है इसको। ओके, व्हाट कैन आई सी दैट थ्रिल्स मी? सो मैं क्या देखूं जो मुझे थ्रिल करेगा, बहुत एक्साइट करेगा? ओके, क्या सुनूं जो मुझे बहुत लव देगा? कोई गाना है? व्हाट कैन आई डू नाउ विच विल मेक मी फील गुड? पेप, मैं ना, मेरे पास एक चैनल मिला है, इट्स अ वेरी गुड चैनल, एफर्मेशन का चैनल है। म्यूजिक के साथ वो ना एफर्मेशन करता रहता है, आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल, आई एम वेल्दी, आई एम दिस एंड दैट, आई विल सेंड यू दैट। और उसी चैनल में बहुत सारे ऐसे एफर्मेशन है जो आप सुन के ही ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। So what can I hear that will make me feel love? So keep asking questions. The moment you are low, keep asking questions. Are there more things that I can see and I love? ऐसा नहीं, मैंने बोला ना लव का कोई एंड नहीं है, और जितना ज्यादा आप लव को बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका लाइफ मैजिकल एंड मिराकुलस हो जाएगा। दैट्स व्हाट द ऑथर इज सेइंग। सो कंटिन्यूअसली बोला, अच्छा मैंने तो यहाँ पे प्यार देख लिया, फील कर लिया, इससे भी और कुछ है जिसको मैं फील कर सकती हूँ, प्यार फील कर सकती हूँ। So this is how we will continuously focus on love. Yeah. So this is what, again, the last line that I've already shared, right? That you are the driver of your mind. So take charge and keep it busy with your instructions by telling it where you want it to go. Your mind only takes off on its own if you're not telling it what to do. Okay? जो माइंड क्यों अपने अंदर ऐसे घूमता रहता है? जब मैं उसको नहीं बोलती हूँ क्या करना है, माइंड तुमको ये करना है, जब मैं नहीं बोलती हूँ तो वो अपने आप ऐसे ऐसे घूमता रहता है, गंदे तरीके से, भूल भाल, ऑल डिप्रेसिंग थॉट्स, ऑल सैड थॉट्स में घूमता रहता है। जब मैं इंस्ट्रक्शंस देने लगती हूँ अपने माइंड को, माइंड फाइंड करो कौन सा चीज है जिसमें मैं प्यार ढूंढ सकती हूँ, तो वो प्यार ढूंढ के लाएगा ही लाएगा। उसको फील मैं करूंगी। आई विल टेल द माइंड, आई फाइंड मी समथिंग, व्हाट कैन आई लव नाउ? ओके, so then the final is, rather than letting it distract you with out of control thoughts, you want your mind to help you give love. Okay, बोल रहे कि माइंड को ऐसा बना दो। द लास्ट लाइन इज ऑल अबाउट माइंड, भगवत गीता का लाइन है, माइंड एक्ट्स लाइक एन एनिमी फॉर दोज हु डोंट कंट्रोल इट। ओके, माइंड किन लोगों के लिए, ये जो माइंड है ये किन लोगों के लिए एनिमी है? जिनको कंट्रोल करना नहीं आता है माइंड को।
Okay, your mind is a powerful and magnificent tool you can use, but you must be in control of it rather than letting it distract you with out of control thoughts. You want your mind to help you give love. It doesn't take long to train your mind to focus on love, and once you have, just watch what happens to your life. अगर तुमने ट्रेन कर दिया अपने माइंड को प्यार करना, जस्ट देखो तुम्हारा जीवन कितना ट्रांसफॉर्म होता है. दैट्स व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट. ओके, so this is all I have for love. Day after tomorrow we will talk on gratitude. Tomorrow evening there is no sessions. Okay, as I said, I will be going to Isha. ठीक है, थैंक यू सो मच. आई एम सो सॉरी, इंटरनेट का इतना पंगा हुआ आज. आई होप, बट फाइनली डिड वेर यू एबल टू अंडरस्टैंड, विपाशा, Yes, the Didi. I did not face any problem actually. I could have hear you very clearly. ओके, 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 देन मे बी आप लोगों का भी हो सकता है, जस्ट सी. बट इतने लोगों का एक साथ में प्रॉब्लम, 2-3 people were going out and in. Let's see. Okay, thank you so much, but I hope you can. It's a very interesting topic, right? It's ये हमारा दिमाग शिफ्ट कर देता है दुख से, अपसेटनेस से, और हमको क्या हो रहा था कि हम सब हैप्पी होना चाहते हैं, बट हमारे पास कोई उपाय नहीं था. बट सी, स्पिरिचुअलिटी इज सो ब्यूटिफुल. इसके पास, एंड दैट्स व्हाई आई टेल यू, स्पिरिचुअल पीपल, दीज मास्टर्स, दे आर सो ग्रेट मास्टर्स. वो हमको उपाय देते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे में हम लव एंड उसको फील कर सकते हैं. ओ सॉरी, बट वी हैव टू, वन सेकेंड. हेलो वैशु, हमारा क्लास खत्म हो गया और आपने ज्वाइन किया.